अब let's start with classification of microbes. Until now we have completed what are the different types of examples that are covered in different types of 5 kingdom classification, and हर kingdom के हिसाब से हमने उसके characteristics किए और example किए. Let's go ahead with only classification of microbes. Now microorganisms could be classified as microorganisms can be classified as prokaryotes, and eukaryotes. Prokaryotes, the primitive type of organisms, and eukaryotes, the new type of organisms. Okay. With reference to size of microbes, remember 1 meter is 10 raised to 6 micrometer mu meter, and 1 meter is also equal to 10 raised to 9 nanometer, that is 10 nm. ये जो दो पार्ट्स है बुक में वो लर्न करने हैं. चलो मूविंग अहेड. प्रोकैरियोट्स के नीचे there is only one type of category of microorganism, that is bacteria. So I can give the example of this bacteria as Salmonella, और एक काम करते हैं वो वाला करते हैं फूड पॉइजनिंग वाला, क्लॉस्ट्रीडियम, बोटुलिनम. यूकैरियोट्स में अगेन 3 क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड एल्गे. Protista, fungi, and algae. Okay, chalo. So protista के लिए एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अमीबा, फंगाई के लिए एग्जाम्पल आई कैन गिव यू ईस्ट, दैट इज बेकर्स ईस्ट, ब्रेड बनती है, एंड एल्गे के लिए एग्जाम्पल आई कैन गिव यू स्पाइरोगाइरा. This is how you are going to classify microorganisms. Write this down. Okay, let's go ahead and study the very first type of microorganism, that is bacteria. चलो, bacteria का size ranges from size 1 μm to 10 μm, that is 1 micrometer to 10 micrometer. Now what are the characteristics? They are unicellular, independent, parasitic organisms. So all the difficult words का meaning I will be writing on the board. ठीक है? पैरासिटिक मतलब क्या? डिपेंड्स ऑन other organisms
और न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, फॉर फूड. Sometimes many bacteria together forms colony. Colony मतलब ग्रुप बना के रहते हैं. Second, bacterial cells is prokaryotic with cell wall, but distinct nucleus or cell organelles are absent. Distinct मतलब visible. So भले ही वो prokaryotic cell होगा, but फिर भी उसमें distinct nucleus, that is visible nucleus दिखाई नहीं देता. या visible cell organelles. Cell organelles मतलब क्या होते हैं? Cellular parts. They reproduce by simple binary fission. Simple binary fission का मतलब है divides into two. Okay. In favorable condition, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. 20 मिनट के अंदर फेवरेबल कंडीशन होने पे, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर और फूड होने पे, बैक्टीरियल सेल्स अपने आप को डिवाइड डबल द नंबर कर सकते हैं. मतलब अगर वो कहीं पे 10 है और फेवरेबल कंडीशन है तो वो 10 का 20, समझा, एग्जैक्टली 20 मिनट्स में अपने आप को डबल कर सकते हैं. विगरसली मतलब वेरी फास्ट. So this was all about bacteria. Now there are different type of bacteria with respect to their shapes. So the first one, coccus. Coccus का मतलब है spherical, circular. मैं सिर्फ मीनिंग लिख रही हूँ, so that सब डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग तुमको पता हो. फिर कोक्टोबैसिलस, there's a word कोक्टोबैसिलस is rod shaped. Okay, then we have Vibrio is comma shaped, and the last one is spirillum, spiral shaped. ठीक है, चलो राइट इट. The next one is protozoans or the protista. Let's start. Protozoan का approximately size is 200 micrometers, millimeters. Protozoans are found in soil, fresh water and sea water. Some are found in the body of other organisms and some are pathogenic. Pathogenic का मतलब होता है causes disease. Like germs. In fact, these are germs. Okay. These are unicellular organisms with eukaryotic cell. There is a great variation in cell structure,
ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, तो सेल के स्ट्रक्चर में बहुत वेरिएशन है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर भी उसी तरह से है। मतलब ये बैक्टीरिया से प्रोटोजोन में आते आते काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती है सेल के अंदर, सेल के अंदर का सामान काफ़ी बढ़ जाता है। सी व्हेन आई से सेल के अंदर का सामान ना, ये अभी नहीं समझेगा, व्हेन वी डू सेल का पार्ट्स वाला चैप्टर, इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, तब समझेगा। फिलहाल के लिए जस्ट अंडरस्टैंड सेल के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो बैक्टीरिया में जितनी है उससे बहुत ज़्यादा इसमें है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटोजोन्स में। There is a great variation in cell structure, organ of locomotion, that is movement का, and modes of nutrition among protozoans. These produced by simple cell division. एक के दो होंगे. For example, amoeba, paramecium, free living in dirty water. Entamoeba histolytica causes amoebiasis. Plasmodium vivax causes malaria. Euglena autotrophic, that is produces its own food. So the four examples that you are studying is amoeba paramecium, entamoeba histolytica, plasmodium vivax for malaria and अपना नॉर्मल वाला यूग्लिना जो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए खुद का खाना खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। द नेक्स्ट दैट वी विल बी स्टडीइंग इज फंगाई। फंगाई का अप्रॉक्सीमेट साइज इज 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स एंड दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज सड़े गले पे। These are eukaryotic organisms. कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं, इसलिए नेक्ड आई से मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखाई देते हैं। They have saprotrophic type of nutrition. सैप्रोट्रॉफिक वर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी वीडियो 1 में समझा चुकी हूँ, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन सड़े गले में, दैट इज डेड एंड डीकेइंग फूड पे। They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. अब ये भी डिटेल में समझेगा नहीं, विल अंडरस्टैंड दिस लेटर। एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट जो ब्रेड बनाने में काम आता है, कैंडिडा विच इज़ एन इन्फेक्शियस फंगस एंड मशरूम विच इज़ एडिबल, कुछ लोग खाते हैं। आगे द नेक्स्ट इज एल्गे। एल्गे का अप्रॉक्सीमेट साइज इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। द एक्वेटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रॉफिक है मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट क्यों? बिकॉज ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल फ्लोरिडा क्लामाइडोमोनास। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेल्युलर, ज़्यादातर वो मल्टीसेल्युलर होती है इसलिए दिखाई देती है, जैसे कि बारिश के टाइम पे पानी में फ्लोट करती हुई एल्गे हम सबको दिखाई देती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज वायरसेस। वायरसेस को मैंने वो पहले वाले फ्लो चार्ट में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज कोई साइंटिस्ट नहीं करता है वायरसेस को किंगडम में। दैट इज द रीजन वायरसेस को कोई भी किंगडम में स्पेस नहीं दी, जगह नहीं दी है उनको। इनफैक्ट लिविंग नॉन लिविंग भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वायरस दूसरों की बॉडी में जाके खुद को लिविंग बना देते हैं। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स as they are said to be organisms at the edge of the living and non living, मतलब जीवन मृत्यु के बीच में, ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है वो। They are studied under microbiology. Microbiology is study of microorganisms. Okay, viruses are extremely minute, that is very small in size. They are 10 to 100 times smaller than bacteria. सबसे छोटा बैक्टीरिया और वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा। सोचो इतने छोटे वायरस ने हम सबको घर में रखा है। They are found in the form of independent particles. Virus is a long molecule. Virus has a long molecule of DNA or RNA. अब DNA, RNA के full form deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid is given in your book. You just have to learn these spellings right now. It is very difficult to understand the meaning of DNA, RNA. DNA, RNA का बस इतना समझ सकते हो कि ये हमारे जेनेटिक, हमारे बॉडी में जो जानकारी है वो खुफिया जानकारी संभाल के रखते हैं। Are covered by a protein coat. Viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins. ये सिर्फ जिंदा चीज़ों पे जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए जब हम कोई चीज़ लाते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग, तो उस पर वायरस बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनको जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। Then they destroy the host cells and become free. जिसके ऊपर जिंदा रहते हैं उसी को मार के फिर फ्री हो जाते हैं एंड वो रिप्रोड्यूस करके अपने रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका मतलब कॉपी। These free viruses again infect new cells. जब ये एक जन की बॉडी से फ्री हो जाते हैं तब ये अपना अगला शिकार, नया होस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। Viruses cause many disease to plants and animals. We have already
been observing one of the example right now, coronavirus disease is also due to the virus problem. What are the examples that we are studying for viral problems? Human poliovirus, HIV, एड्स वायरस, इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल फ्लू का वायरस, कैटल में मतलब गाय में पिकॉर्ना नाम का वायरस होता है, प्लांट्स में टबैको विल्ट वायरस होता है, टबैको मोज़ैक वायरस होता है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो खुद वायरस होकर बैक्टीरिया पे अटैक करता है. तो ये एग्जाम्पल सिर्फ लर्न करने हैं, इनका एग्जैक्ट रोल क्या है वो फिलहाल समझना नॉट इम्पॉर्टेंट. So right now what you are studying is all the 5 kingdoms and all the 5 types of microorganisms with their characteristics and nutrition habits. So we have completed the chapter. See you then.